Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study ashram system. So let's start the lecture. See, in Hinduism, fulfillment of 3 renas, performance of 5 mahayajnas, performance of 16 sanskaras and obtaining 4 purusharthas have been given utmost importance. Also, the ultimate goal of life is considered moksha or salvation. Third thing is that human gets a life once, therefore this life must be enjoyed materially also. Therefore, there must be a system by which human can enjoy his material life, can follow spiritualism, and at last can get salvation or moksha. And ashram system is a system, right? Ashram system is just such a system through which human can enjoy his material life, can follow spiritualism, and can get moksha, right? So simply we can say that ashrams are considered as the resting place in the middle of life's journey undertaken by human beings for the attainment of moksha, that is the ultimate goal of the life, right? तो आश्रम सिस्टम में आश्रम क्या है? आश्रम्स आर कंसीडर्ड एज द रेस्टिंग प्लेस in the middle of life's journey undertaken by human beings for the attainment of moksha, the ultimate goal of life. In this way, ashram system provides the best way to live life in an organized and systematic manner, right? तो जो आश्रम सिस्टम है उनके अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है, सो डेफिनेटली उसकी एक ऑर्गेनाइज्ड और कैसी सिस्टमेटिक लाइफ होगी, राइट? सो आश्रम सिस्टम प्रोवाइड्स द बेस्ट वे टू लिव लाइफ इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक मैनर. और जो आश्रम सिस्टम है ये कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पर जो है बेस्ड है. आश्रम सिस्टम को शुरू क्यों किया गया? सो आश्रम सिस्टम वाज स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट 3 renas, 5 mahayajnas, right, 16 sanskaras and 4 purusharthas in a life. और इनको फुलफिल करने के लिए या इनको अटेन करने के लिए ही लाइफ को 100 ईयर का अज्यूम किया गया है और 25 ईयर के 4 आश्रम्स हैं वो डेवलप किए गए हैं, राइट? जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम हो जाएगा, वानप्रस्थ आश्रम हो जाएगा एंड संन्यास आश्रम, राइट? नाउ वी विल स्टडी डेफिनेशंस ऑफ आश्रम सिस्टम, राइट? So we will study definitions, or whenever 5 marker or 11 marker question is asked regarding ashram system, then these definitions can be quoted by us, right? Also through these definitions we will understand the ashram system. So definitions of ashram system, first is P. N. Lord. See, according to P. N. Lord, ashram is a halt or resting place, right? Ashram is a halt or resting place, that is, the ashram is such a resting place where a person stops and prepares for the ultimate goal of life, that is salvation. So this is the definition of P. N. Lord. Now we will see according to Ved Vyasa. See, according to Ved Vyas, the 4 ashrams of life are the 4 steps for the development of personality on which one attains the Brahma, right? और यदि किसी को ब्रह्मा मिल गया तो वही क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है. So according to Ved Vyas, the 4 ashrams of life are the 4 steps for the development of personality on which one attains Brahma. Now, according to Brajnath Singh Yadav, the meaning of ashram is that department of life in which man makes efforts, right? So the meaning of ashram is that department of life in which man makes effort. Clear? Now we will see meaning of ashram system, right? And this can be asked as a 3 marker question or 5 marker question. What is the meaning of ashram system? See, the word ashram is derived from the root word shram,
राइट। और जो श्रम है, श्रम का मतलब होता है एफर्ट या लेबर। सो मीनिंग ऑफ द वर्ड root word shram means labor or effort. Thus we can say that ashrams are those places where a person does many types of shram or efforts at different stages of life, right? Also the literal meaning of ashram is the place of rest, right? तो अगर हम यहाँ पर रूट वर्ड से अगर जानने की कोशिश करें, सो आश्रम द आश्रम इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड श्रम, और श्रम का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ श्रम या एफर्ट्स को करना जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में। या फिर हम दूसरी तरीके से अगर देखें तो जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है, लिटरल मीनिंग ऑफ आश्रम इज द प्लेस ऑफ रेस्ट, राइट। सो एसेंशियली द आश्रम सर्व्स एज resting place in the journey of life where preparations are made for the journey to the next level, right? So if जैसे अगर हम देखें, जब हम कोई गेम खेलते हैं, उस गेम में अगर हमको नेक्स्ट लेवल पर जाना होता है तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी होती है। वैसे ही आश्रम सिस्टम होते हैं, राइट। लाइफ में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ही आश्रम सिस्टम एक रेस्टिंग प्लेस होते हैं। इन रेस्टिंग प्लेस में लाइफ के नेक्स्ट लेवल को पहुंचने में के लिए या नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए यहाँ पर जो है प्रिपरेशंस की जाती हैं, राइट। और इन हिंदुइज्म देयर आर 4 आश्रम। फर्स्ट इज ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम, राइट। नाउ वी विल सी ओरिजिन ऑफ आश्रम सिस्टम। See, this may be asked as a 3-marker question or 5-marker question when the ashram system was originated in India. So there are different opinions. See, there are different opinions when the ashram system was originated in India, right? It is considered that ashram system has been originated in Vedic period, but because of the absence of evidences, राइट, इस बात के जो है एविडेंसेस नहीं है, राइट। सो द ओरिजिन ऑफ आश्रम सिस्टम इज कंसीडर्ड वैदिक पीरियड, बट देयर आर नो एविडेंसेस, राइट, जो कि इस बात को क्या करें, प्रूव करें, राइट। If we talk about later Vedic period, so in later Vedic period there were 3 ashrams, right? और उनका क्रम था गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड ब्रह्मचर्य आश्रम। So there were 3 ashrams in later Vedic period, and the first systematic mention of the entire ashram system is found in the Javali Upanishad. So this is the most important fact. So the systematic ashram system was first mentioned in Javali Upanishad. Therefore the ashrams were conceived in the Upanishad period. तो हम कह सकते हैं कि चूंकि जवाली उपनिषद में there is a systematic mention of entire ashram system, therefore it is accepted that ashram system has been originated in Upanishad पीरियड। और जो फुली इस्टेब्लिश हुए हैं आश्रम सिस्टम वो सूत्र पीरियड में ये फुली क्या हुए हैं, इस्टेब्लिश हुए हैं। सी नाउ वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ आश्रम सिस्टम, कि आश्रम सिस्टम के होने के पीछे कंसेप्ट क्या है, राइट। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-marker question can be asked in the examination. What is the concept of ashram system, right? So we will see the concept of ashram system. See, in Hinduism, right, in Hinduism the 4 major duties or major goals which are dharma, arth, काम एंड मोक्षा, और ये जो 4 पुरुषार्थ हैं इनको ऑब्टेन करना अनिवार्य माना गया है, राइट। सो ऑब्टेनिंग 4 पुरुषार्थास धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्षा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन हिंदुइज्म, राइट। और इन सब की फुलफिल के लिए ये जो 4 पुरुषार्थास हैं इनके पूर्ति के लिए ये जरूरी है कि जो इंडिविजुअल है, राइट, इंडिविजुअल मानसिक रूप से, राइट, फिजिकली, इकोनॉमिक, राइट, मोरल, स्पिरिचुअल जो है उसमें क्वालिटीज हों। सो सिंपली वी कैन से दैट धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्षा आर कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज इन हिंदुइज्म। टू फुलफिल these 4 purusharthas
इंडिविजुअल मस्ट बी possessed of mental, physical, economic, moral, spiritual qualities, right? And by using these qualities, it is through the आश्रम सिस्टम, आश्रम सिस्टम के द्वारा ही जो इंडिविजुअल है वो मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिक या मॉरल क्वालिटीज को गेन करता है, और फिर इन क्वालिटी के माध्यम से ही, या हम ये कहें कि ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से ही फिर वो इन 4 जो पुरुषार्थास हैं इनको क्या करता है, एक्वायर करता है, राइट? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आश्रम सिस्टम इज अ रेस्टिंग, राइट? आश्रम्स आर द रेस्टिंग प्लेसेस जहां पर साइकोलॉजिकल जो है ट्रेनिंग होती है, और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से ही मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिक, मोरल, स्पिरिचुअल जो है क्वालिटीज गेन की जाती हैं ह्यूमन के द्वारा, और फिर जो 4 पुरुषार्थास हैं उनका अटेनमेंट जो है पॉसिबल हो पाता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट Ashram system divides Hindu life into 4 levels and helps a person to do so that they can achieve moksha, the ultimate goal of life, by fulfilling all their duties, purushartha and obligations in a systematic manner. Right? So this is the definition of ashram system. So ashram system divides Hindu life into 4 levels and helps a person to do so that they can achieve moksha, the ultimate goal of life, by fulfilling all their duties, duties, that is purusharthas and obligations in a systematic manner. Clear? See, now we will see the objective of आश्रम सिस्टम, राइट? तो आश्रम सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं उनको हम एक एक करके समझेंगे। द फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग द एज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइफ इन द इंडिविजुअल, राइट? सो वी हैव सीन दैट जो आश्रम सिस्टम है वो एक वे प्रोवाइड कराता है जिससे व्यक्ति और जिससे इंडिविजुअल सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जो है अचीव कर सकता है। तो लाइफ की कौन सी स्टेज पर क्या करना चाहिए, कौन से ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इसकी पूरी जानकारी, राइट? और इसके ऑब्जेक्टिव जो है हमें आश्रम सिस्टम से ही पता चलते हैं। सो आश्रम सिस्टम डिटरमाइंस द एज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइफ। सेकेंड, इंश्योरिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, राइट? आश्रम सिस्टम में लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर क्या कार्य किए जाने चाहिए, राइट? किस तरीके की जो है क्या कार्य किए जाने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, और उसके लिए प्रिपरेशंस पर फोकस किया जाता है, और इसी वजह से जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो पाता है। थर्ड इज डिटरमाइन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इनेबल द इंडिविजुअल टू फुलफिल देम, राइट? तो सोसाइटी के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे फुलफिल किया जाता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय आश्रम सिस्टम। फोर्थ इज ensuring living according to 4th purusharthas, or we can say that one can attain 4 purusharthas through these ashram system. Strike a balance between age and mindset, right? This is the most important thing, right? अगर हम देखें इन प्रेजेंट वर्ल्ड, हम बचपन में खेलते कूदते हैं, राइट? एंजॉय करते हैं, फिर जब यंग एज आती है तो यंग एज में फिर हम एजुकेशन के बारे में या लाइफ के बारे में सोचते हैं, राइट? और फिर जब यंग एज पूरी की पूरी हमारी चले जाती है, एक तरीके से हम कह सकें कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो फिर हम जो है मैरिज के बारे में सोचते थे। इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरा जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारी जो पूरी लाइफ है वो हौच पौच हो जाती है। परंतु आश्रम सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो आश्रम सिस्टम जो है साइंटिफिक है, राइट? आश्रम सिस्टम इज अ साइंटिफिक मेथड, और अगर आप आश्रम्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में यू विल अचीव व्हाट एवर यू वांट, राइट? दूसरी चीज, आप आपकी मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो कर सकते हैं, और जो अल्टीमेट गोल है मोक्ष का वो भी आप अटेन कर सकते हैं, राइट? तो कौन सी लाइफ में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय आश्रम सिस्टम। फॉर एन एग्जाम्पल, ब्रह्मचर्य आश्रम, राइट? तो देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम में यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है,
क्योंकि पता है कि अगर शुरुआत में ही मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, सो इट वुड बी वेरी इजी टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। अगर अच्छा एजुकेशन मिल जाता है, अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है, राइट, एजुकेशन अच्छा हो जाता है, अच्छी मोरल क्वालिटीज़ जो हैं अचीव हो जाती हैं, सो डेफिनेटली वन कैन एंजॉय हिज रेस्ट ऑफ द लाइफ। और यदि उसकी जो शुरुआती लाइफ है, राइट, या हम ये कहें कि 0 to 25 ईयर, राइट, अगर 25 ईयर तक वह खेलने कूदने में ही या इंजॉय करने में ही लगा रहा, राइट, कोई भी व्यक्ति अगर 25 साल तक घूमने फिरने में ही इज एंजॉइंग हिज मटेरियल लाइफ, यूजिंग मोबाइल फोन्स, राइट, जॉन्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो डेफिनेटली ही वॉन्ट हैव इनफ नॉलेज, राइट, ना तो उसके पास में मेंटल कैपेसिटी होगी, ना ही फिजिकल कैपेसिटी होगी कि वो अपनी लाइफ में अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए, राइट। तो कौन सी लाइफ स्टेज में कैसा माइंड सेट होना चाहिए, दैट इज प्रोवाइडेड बाय आश्रम्स, राइट। आल्सो मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सोशल ऑर्डर टू गेट द सॉल्वेशन, राइट। नो डाउट मोक्षा इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, बट मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये नहीं कि हम जंगल में ही जाके जो है तपस्या करने लग गए, राइट। हमारे जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट, उनको भी हमको जो है फुलफिल करना है, तभी जाकर एक्चुअली वी कैन गेट द मोक्ष। तो आश्रम सिस्टम के माध्यम से जो सोशल ऑर्डर है ये भी मेंटेन किया जा सकता है, राइट, और उसके साथ भी मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है, इम्प्रूविंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ अ पर्सन। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम ठीक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होगा, डेवलप होगा, सो डेफिनेटली उसका जो गृहस्थ आश्रम है या जो गृहस्थी लाइफ है, गृहस्थ लाइफ है, ये उसकी बहुत ही अच्छी होगी। कुल मिलाकर अगर हम सामान्य भाषा में कहें, अगर किसी इफ इंडिविजुअल हैज़ अ गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ, राइट, ही हैज़ डेवलप्ड हिज पर्सनालिटी, देन डेफिनेटली उसकी जो हाउस होल्ड लाइफ है वह भी क्या होगी, इंप्रूव होगी, राइट। ओके, नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आश्रम सिस्टम, राइट। सो आश्रम सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। सो जो आश्रम सिस्टम है ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ना कि सोसाइटी से, राइट। आश्रम, इन आश्रम सिस्टम अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट आश्रम, राइट। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, सो पर्टिकुलर को जो है ब्रह्मचारी बनकर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा गृहस्थ आश्रम के लिए। सो आश्रम सिस्टम इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, नॉट टू ग्रुप। आल्सो जो आश्रम सिस्टम है वो क्या है, एज बेस्ड है ऑन पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ। व्यक्ति का माइंड सेट किस प्रकार का होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, राइट, उसकी ड्यूटीज कौन कौन सी होंगी, उसके ऑब्लिगेशंस कौन कौन से होंगे, एंड व्हाट ही नीड्स टू डू, इस पर पूरा जो है फोकस किया जाता है। और जो आश्रम सिस्टम है इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, राइट। सो वी विल सी वन बाय वन। सी देयर आर 4 आश्रम्स, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, राइट, एंड संन्यास आश्रम। Here we will discuss which type of question can be asked from this topic. So the first is, what are the characteristics of ashram systems? So you have to pick up the characteristics of a brahmacharya ashram, grihastha ashram, और उस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। या 11 मार्कर में पूरा ब्रह्मचर्य आश्रम पूछा जा सकता है, राइट। What do you understand by brahmacharya ashram, right? Write down the duties of brahmachari, or what is brahmacharya ashram, right? State the importance of brahmacharya ashram, यह पूछा जा सकता है, right? Write down the importance of grihastha ashram, right? या फिर why is वानप्रस्थ आश्रम important, क्लियर। या संन्यास आश्रम क्या है, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इस टाइप से जो है डिफरेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो वी विल स्टडी वन बाय वन एवरी आश्रम इन डिटेल। सो फर्स्ट इज ब्रह्मचर्य आश्रम। सी द इटिमोलॉजी ऑफ ब्रह्मचर्य वर्ड इज ब्रह्मा प्लस का चर्या। हियर ब्रह्मा मीन्स ग्रेटनेस एंड चर्या मीन्स टू walk or to follow,
So simply, Brahmacharya refers to that particular stage of life in which walk on greatest path or follow the path of great personalities, right? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लाइफ की, right? ये लाइफ की वह स्टेज है जिसमें व्यक्ति को जो ग्रेटेस्ट पाथ है उस पर चलना चाहिए या जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं उनको फॉलो करना चाहिए. So Brahmacharya refers to that particular stage of life in which walk on greatest path or follow the path of great personalities. और इसका जो सेंट्रली ऑब्जेक्टिव क्या है? So the central objective of Brahmacharya ashram is the physical, mental and spiritual development of individual. राइट यहाँ पर तीनों के तीनों वर्ड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. राइट फिजिकल डेवलपमेंट, राइट फिजिकल डेवलपमेंट मतलब उसका हेल्थ अच्छा हो, राइट फिजिकल डेवलपमेंट हेल्थ अच्छा हो, राइट उसके साथ ही उसकी बॉडी जो है किसी भी कार्य को आसानी से कर पाए. मेंटल डेवलपमेंट, साथ ही साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये तीनों ब्रह्मचर्य आश्रम के सेंट्रली क्या है ऑब्जेक्टिव है. इसके साथ में वन हु इज इन ब्रह्मचर्य आश्रम उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है और ब्रह्मचारी जो है उसको अपनी हार्श लाइफ के लिए खुद को प्रिपेयर करना होता है. एंड ब्रह्मचर्य आश्रम इज द फर्स्ट आश्रम जो लाइफ का चाइल्डहुड से लेकर 25 ईयर तक का जो टाइम पीरियड है, राइट चाइल्डहुड से लेकर 25 ईयर तक का जो पीरियड है इसको ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है. अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? राइट सो ब्रह्मचर्य आश्रम इज स्टार्टेड आफ्टर द उपनयन संस्कार. राइट उपनयन संस्कार. So after performance of the उपनयन संस्कारा, one enters to ब्रह्मचर्य आश्रम. और we have seen in the previous lecture कि जो performance of उपनयन संस्कार है ये अलग अलग वर्णों के अलग अलग वर्ण इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वन इज फ्रॉम ब्राह्मण वर्ण तो उसका उपनयन संस्कार 8 साल में ही होगा, विच मीन्स दैट जो ब्राह्मण बॉय और गर्ल, right so Brahmin individual can enter brahmacharya ashram at the age of 80 years. right वही जो क्षत्रिय चाइल्ड है, right वह 11 years की एज में जो है उसका उपनयन संस्कार हो जाता है. right एंड 12 ईयर की एज में जो वैश्य हैं उनका उपनयन संस्कार हो जाता है. तो ब्राह्मण चाइल्ड है एट द एज ऑफ 80 ईयर, फिर क्षत्रिय चाइल्ड एट द एज ऑफ 11 ईयर एंड 12 ईयर की एज में जो वैश्य चाइल्ड है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है. राइट वहीं जो उपनयन संस्कार इट इज नॉट परफॉर्म फॉर द शूद्रास. राइट यही एक कारण है कि जो ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है और जो वैश्य वर्ण है इनको द्विज बोला जाता है. राइट क्या बोला जाता है? द्विज. राइट क्योंकि द्विज आफ्टर द उपनयन संस्कारा, ये जो आफ्टर द उपनयन संस्कारा जो चाइल्ड है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है और उसके बाद से ही उसका क्या होता है? एजुकेशन प्रारंभ होता है जिसमें वह वैदिक नॉलेज एंड एजुकेशन को प्राप्त करता है. परंतु शूद्रास का उपनयन संस्कार का परफॉर्मेंस नहीं होता है. राइट इसीलिए इन तीनों को अपर वर्णास बोला जाता है एंड इनको द्विज बोला जाता है. क्लियर? Now we will see the objectives of ashram system. So objectives of brahmacharya ashram. See, objective of brahmacharya ashram. The first objective is physical development. Right? So the first aim of brahmacharya ashram is physical development. See, जो लाइफ है वो काफ़ी हार्श होती है, कई बार कई डिफ़िकल्टीज़ कई प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है और यदि कोई व्यक्ति फिजिकली डेवलप्ड नहीं होगा सो डेफिनेटली वह अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर पाएगा. सो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? फिजिकली डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. और यहाँ पर ब्रह्मचारी का मतलब केवल और केवल सेक्सुअल कंट्रोल से नहीं होता है. राइट इट इज़ अ रॉन्ग
एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अवधारणा है, रॉन्ग कंसेप्ट है। ब्रह्मचर्य का जो मतलब है वो सेक्सुअल कंट्रोल के साथ साथ, राइट, सेक्सुअल कंट्रोल तो होगा ही सही, इसके साथ साथ चाइल्ड इज केप्ट अवे फ्रॉम मीट, फ्लावर, राइट, फ्रेग्रेंस, जूस, डांसिंग, सिंगिंग। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दीज आर द थिंग्स विच डिस्ट्रैक्ट द पर्सन। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, राइट, आपकी क्लोथिंग अच्छी होगी, आपकी फूड अच्छे होंगे, राइट, साथ ही साथ अगर आप इन सब चीज़ों में जो है इन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे, सो डेफिनेटली आप आपके जो है आपके पाथ से या ऑब्जेक्टिव से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इससे सेंसुअल क्या होगा, अराउजल होगा। तो ब्रह्मचर्य का पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट, और इसमें सेक्सुअल कंट्रोल के साथ साथ द चाइल्ड इज केप्ट अवे फ्रॉम मीट, फ्लावर, फ्रेग्रेंस, जूस, डांस, राइट, डांसिंग एंड सिंगिंग, ताकि उसकी जो सेंसुअल अराउजल है वो ना हो पाए। द सेकेंड पर्पज ऑफ दिस आश्रम इज मेंटल डेवलपमेंट, राइट, और मेंटल डेवलपमेंट के लिए उसे इस आश्रम में क्या पढ़ना है इसके बारे में जो है विस्तार से उसको जानकारी दी जाती है। आल्सो ही द चाइल्ड इज टॉट टू हैव प्योर कंडक्ट, राइट, ही इज प्रोवाइडेड एजुकेशन, और उसको जो प्योर कंडक्ट है उसको फोकस कराया जाता है। थर्ड इज द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, राइट, सो इन दिस आश्रम द इम्पोर्टेंस और एम्फेसाइज हैज़ बीन ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए चाइल्ड को नॉन वायलेंस है, ट्रूथ है, सेलिवेसी है, राइट, कंटेनमेंट है, राइट, या प्योरिटी है, राइट, ये एसेंशियल जो क्वालिटीज़ हैं इसके लिए बच्चे को जो है डेवलप किया जाता है। क्लियर? नाउ वी विल सी द ड्यूटीज ऑफ ब्रह्मचारी, राइट, हु इज इन ब्रह्मचर्य आश्रम is known as brahmachari. So now we will see what are the duties of brahmachari, right? So brahmacharya, जो ब्रह्मचर्य है, right, to follow brahmacharya in brahmacharya ashram, brahmachari has certain duties, और उसके लिए सबसे पहली चीज ब्रह्मचारी हैज टू लिव विद हिज गुरु इन गुरुकुला, राइट, तो ब्रह्मचारी को उसके गुरु के साथ में गुरुकुल में रहना होगा, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट the brahmachari has to follow celibacy and strict rules and regulations. brahmachari has to leave the उसके पास में एक फिक्स्ड रूटीन होता है, राइट। ब्रह्मचारी लीव द बेड बिफोर सनराइजेस, आफ्टर दैट वो अपने गुरु को प्रणाम करता है, फिर उसके बाद में तैयार होके गुरु के पास में आता है एंड रिपीट द प्रीवियस एक्टिविटीज, राइट, कुल मिलाकर वो रिवाइज करता है, उसके बाद में जो फर्दर नॉलेज प्राप्त करता है। आफ्टर दैट इन द आफ्टरनून ही द ब्रह्मचारी गोज टू नियर बाई विलेजेस टू ब्रिंग आर्म्स, तो खाने के लिए आर्म्स लेके आते हैं। आफ्टर दैट इन द इवनिंग टाइम जो थर्ड क्वार्टर है उस समय तक रेस्ट किया जाता है। फिर अगेन इन द इवनिंग जो स्टडी होती है, एक्सरसाइज होती है और यज्ञास का परफॉर्मेंस होता है, राइट, फिर भोजन किया जाता है। आफ्टर दैट बोइंग डाउन द गुरु, और उसके बाद में जो है ब्रह्मचारी सो जाता है। नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का इम्पोर्टेंस क्या है, दिस इज आल्सो जो है कैन बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम वी विल सी आपको भी पता है कि यदि लाइफ के 0 to 25 ईयर्स, राइट, इसमें यदि किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट हो जाता है सो डेफिनेटली उसकी जो लाइफ है, अपकमिंग लाइफ है, वो बहुत अच्छी होगी। और अगर 0 to 25 ईयर्स में ही उसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, राइट, उसका मेंटली, फिजिकली, राइट, या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो वह अपनी लाइफ की हार्ड कंडीशंस को जो है हार्ड कंडीशन से फाइट नहीं कर पाएगा, राइट। इसीलिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इट हैज़ गिवन, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। वी विल सी वन बाय वन, राइट। सो इन दिस आश्रम चाइल्ड इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू मेक देम फिट फॉर द हार्श लाइफ इन द कमिंग फ्यूचर, राइट। तो
इस आश्रम में जितने भी जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारीज आर ट्रेंड टू मेक देम फिट फॉर द हार्श लाइफ, और इसमें जो ब्रह्मचारी हैं उनको फिजिकली, मेंटली, राइट, और स्पिरिचुअली जो है डेवलप किया जाता है, राइट, और इसके साथ ही फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली डेवलप किया जाता है, ताकि जो गृहस्थ आश्रम है, राइट, गृहस्थ आश्रम का सीधा सा मतलब ये होता है कि आफ्टर मैरिज यू वुड हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, तो आपको आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, आपको सोसाइटी के लिए भी करना है, तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा तो वह अपने गृहस्थ आश्रम को जो है आसानी से जो है गृहस्थ आश्रम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही साथ इस आश्रम में जो फिजिकल या मटेरियल प्लेजर्स हैं या फिजिकल प्लेजर्स हैं उनको फोकस कम किया जाता है, ताकि व्यक्ति हार्श लाइफ के लिए क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। इसके साथ ही राइट, इन ब्रह्मचर्य आश्रम में जो लर्नर होता है उसको मोल्ड किया जाता है, ताकि वह सेल्फ रिस्ट्रेन, कैरेक्टर बिल्डिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइट, एंड एक सोशल जो है पर्सन जो है डेवलप हो जाए। अब अगर इसके इंपॉर्टेंस को हम सम अप करें, सो पीवी काने सेज, राइट, पीवी काने सेज दैट in celibacy one had to live according to discipline and determination. He had to acquire the knowledge of literacy stored from the past. He learned the ideas of obedience, respect, simple living and high thinking, right? So this was the importance of brahmacharya ashram. Second is grihastha ashram. See, grihastha refers to the ashram in which person lives by becoming grihastha or building a grihastha life. गृहस्थ कैसे बनेगा? When a individual marriages, right? तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जब कोई व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ में रहता है तो उसकी लाइफ को क्या कहा जाता है? गृहस्थ लाइफ कहा जाता है, राइट? तो फैमिली के साथ में रहना ही या फैमिली बनाकर रहने की जो लाइफ है उसको ही गृहस्थ लाइफ बोला जाता है। और इस आश्रम में कब प्रवेश करता है? राइट, सो आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ पानी ग्रहण संस्कार और विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार संपन्न होने के पश्चात ही या पानी ग्रहण संस्कार संपन्न होने के पश्चात ही वन कैन इंटर द गृहस्थ आश्रम, राइट, एंड गृहस्थ आश्रम इज आल्सो considered as important ashram because इस आश्रम में रहकर ही, right, in this ashram one can fulfill the three renas, that is देव रेना, ऋषि रेना and पितृ रेना, right? और इस आश्रम का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है? 25, जनरली 25 ईयर से लेकर 50 ईयर तक का जो टाइम पीरियड है वो गृहस्थ आश्रम का टाइम पीरियड जो है माना जाता है। नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गृहस्थ आश्रम। फर्स्ट इज, राइट, इन दिस आश्रम इंडिविजुअल अटेन्स धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्षा, राइट? तो with the through this ashram, right, through this ashram individual can have these four purusharthas: dharma, arth, काम and मोक्ष। second thing is that कि इस आश्रम में व्यक्ति not only hard work for his own life, right, but जो सोसाइटी है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए भी करता है, राइट? तो थ्रू दिस आश्रम व्यक्ति खुद की लाइफ के अपलिफ्टमेंट के लिए, साथ ही साथ सोशल वेलफेयर के लिए या सोसाइटी के लिए भी जो है कार्य करता है, राइट? द थर्ड एम ऑफ दिस आश्रम इज टू गेट ऋण ऑफ 3 ऋणा, राइट? तो ये जो 3 ऋण जो है फुलफिल हो जाते हैं, सो इंडिविजुअल कैन गेट रिड ऑफ दीज 3 ऋणास। सो वी विल स्टडी द ड्यूटीज, नाउ वी विल स्टडी द ड्यूटीज ऑफ गृहस्थ आश्रम, राइट? तो गृहस्थ आश्रम में क्या ड्यूटीज होती हैं, राइट? ड्यूटीज ऑफ गृहस्थ आश्रम, और वी कैन से दैट द ड्यूटीज ऑफ गृहस्था, राइट? तो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ गृहस्था? द फर्स्ट इज अर्न अकॉर्डिंग टू धर्मा, राइट? उसके जो धर्म है, अकॉर्डिंग टू हिज धर्म जो है उसको अपने परिवार या फैमिली के
जो है फैमिली के वेलफेयर के लिए उसको अर्थ पर फोकस करना चाहिए, राइट। जो सेकेंड हमारा पुरुषार्थता है अर्थ, राइट। सो अर्निंग अकॉर्डिंग टू धर्मा, राइट, और वी कैन से दैट ऑब्टेनिंग द अर्थ पुरुषार्थ। सेकेंड, मैरिज लॉफुली एंड कीपिंग इन रिलेशन विद वाइफ ओनली, राइट, ताकि जो सोसाइटी है, राइट, सोसाइटी के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सके, राइट, बाय प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए अपना सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कर सके। साथ ही साथ टेक द फूड लेफ्ट ओवर आफ्टर फीडिंग द गॉड्स, राइट, एंसेस्टर्स एंड स्लेव्स। कुल मिलाकर जो गृहस्थी है वो सबसे गृहस्थी तभी खाना खाएगा, राइट, टेक द फूड, राइट, जब वो है पहले अपने गॉड्स को, अपने एंसेस्टर्स को, जो स्लेव्स हैं उनके लिए जो है खिला देगा। फिर कंसीडरिंग द फुलफिलमेंट ऑफ कामा, राइट, यहाँ पर कामा जो पुरुषार्थ है उसका मतलब जो है सेक्सुअल प्लेजर के साथ साथ में उसकी जो मटेरियल लाइफ है उसको एंजॉय करना। तो इस लाइफ में व्यक्ति जो है अपनी मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर सकता है एंड अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, मॉन्क्स को, गेट्स को जो है रिस्पेक्ट देना। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी रिना ऑफ गृहस्थ आश्रम। सो वी विल स्टडी 3 रिनास ऑफ गृहस्थ आश्रम। फर्स्ट इज देव रिना। See, one can have prosperity, development, right, happiness and joy with the grace of gods and goddess, right। तो gods and goddess के लिए, gratitude के लिए, right, so gratitude toward gods and goddesses, right, also मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है इस ऋणा को या इस ऋणा को फुलफिल करना बहुत ही जरूरी है। And to get rid of this Dev Rina, one has to perform rituals, for an example yajnas as far as capacity। तो कोई भी व्यक्ति यजना के माध्यम से गॉड्स के प्रति जो है ग्रेटिट्यूड दर्शा सकता है और जो है मोक्ष उसकी प्राप्ति का जो रास्ता है वो तैयार हो सकता है। तो ये कौन सा ऋणा हो जाएगा? देव ऋणा हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर ऋषि ऋणा हो जाएगा, राइट। देखिए in Hinduism or according to ashram system, in Gurukulas, Rishi provides education for जो ऋषि जो होते हैं वो एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए ये ऋषि ऋण होता है। और ऋषि ऋण से ऋषि ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? राइट, स्टडीइंग द वेदास, राइट। तो वेदों को पढ़कर जो है ऋषि ऋण को फुलफिल किया जा सकता है। तीसरा हो जाएगा पितृ ऋण हो जाएगा, चूँकि पितृ जो है फादर या जो पितृ होते हैं वो वर्त के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति, राइट, बाय प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करके जो है पितृ ऋण से पितृ उनको जो चुकाया जा सकता है, राइट। सो थ्रू यजनास, राइट, वन कैन फुलफिल देव ऋणा, राइट, स्टडिंग वेदास वन कैन फुलफिल ऋषि ऋणा एंड प्रोड्यूसिंग बाय प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन वन कैन फुलफिल पितृऋणा। ओके, नाउ वी विल सी पंच महायज्ञास ऑफ गृहस्थ आश्रम। सो वी विल स्टडी पंच महायज्ञास ऑफ गृहस्थ आश्रम। द फर्स्ट इज ब्रह्म यज्ञ, राइट। जो ब्रह्म यज्ञ होता है, इन ब्रह्म यज्ञ वेदास आर स्टडीड, राइट, और वेदों को जो है पढ़ा जाता है, राइट। और इसके माध्यम से पर्सन एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू एंशिएंट लर्न्ड सेजेस, जो सेजेस होते हैं उनके टुवर्ड जो है ग्रेटिट्यूड जो है प्रदर्शित करता है। सो तो जो ब्रह्म, राइट, जो ब्रह्म यज्ञ होता है, इन दिस वेदास आर स्टडीड। सेकेंड, पितृ यज्ञ, राइट, ये जो पितृ यज्ञ है दिस इज परफॉर्म्ड फॉर द पीस ऑफ डेड एंसेस्टर्स, और इसके लिए एंसेस्टर्स आर ऑफर्ड तर्पण और श्राद्ध। जो श्राद्ध है और तर्पण किए जाते हैं ताकि जो डेड एंसेस्टर्स हैं उनकी सोल को पीस मिल सके। थर्ड इज देव यज्ञ, राइट, और इन देव यज्ञास जो डिटीज हैं वो वर्शिप की जाती हैं। फोर्थ इज अतिथि यज्ञ। देखिए
क्या होता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी यूज टू लिव इन गुरुकुलास, और गुरुकुल में वह दोपहर में विलेज टू विलेज में आम्स मांग कर लाता है और उसी से वह भोजन ग्रहण करता है। इसीलिए यहाँ पर भाई सीधी सी बात है, किसी न किसी इंडिविजुअल को किसी न किसी व्यक्ति ने आम्स में उसको खाने के लिए दिया होगा। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके घर आता है तो उसको वह फूड प्रोवाइड करें, राइट। सो इट इज नेसेसरी दैट विजिटर शुड प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी, राइट, और उसको जो है अतिथि को या गेस्ट को जो है फूड जो है प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, यथति यजना हो जाएगा। एंड फिफ्थ इज भूत यजना। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि फॉर द वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी या डेवलपमेंट के लिए प्रकृति ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा। इसीलिए जो भूत यजना होता है उसमें जो बलि होती है या ऑफरिंग्स होती है, राइट, उस ऑफरिंग्स को छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है और उनको ऑल डायरेक्शंस में उस ऑफरिंग्स को जो है छोड़ दिया जाता है, ताकि जो एनिमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं वो इस ऑफरिंग्स को कंज्यूम कर सकें। और प्रकृति ने हमारे वेलफेयर के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए जो भी कंट्रीब्यूट किया है थ्रू दिस भूत यजना, हम प्रकृति के टुवर्ड जो है ग्रेटिट्यूड को प्रदर्शित करते हैं। नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ गृहस्थ आश्रम, राइट। अब देखिए जो गृहस्थ आश्रम है उसका हम जो है इंपॉर्टेंस देखते हैं। सी देयर आर 4 आश्रम्स, राइट, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। और उसमें से भी जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य एक ऐसा आश्रम है जो कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इफ वी टॉक अबाउट वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, राइट, तो इन सब आश्रम में जो फोकस है वो इंडिविजुअल पर होता है, या हम ये कहें कि इसमें जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर होता है या इंडिविजुअल गोल्स पर होता है। परंतु जो गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट, मेंटेनिंग सोशल कंटिन्यूटी और सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला तो यही है कि गृहस्थ आश्रम इज इम्पोर्टेंट फॉर सोशल वेलफेयर, राइट, मेंटेनिंग सोशल कंटिन्यूटी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी गृहस्थ आश्रम इज इम्पोर्टेंट, राइट, क्योंकि इसी आश्रम के माध्यम से वन कैन फुलफिल द 3 रिनास, राइट, एंड वन कैन परफॉर्म द 5 महायज्ञास। Second thing is that, see, if one want to get moksha, then definitely he can go to jungle and over there he can have tapasya, right, penance, and he can get the moksha. But it is rather easy if somebody is living in a society, somebody is residing or somebody is having material life after, or we can say that despite having material life, if one gets moksha, then this would be a big achievement. इसीलिए गृहस्थ आश्रम को इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि गृहस्थ लाइफ को जीते हुए, राइट, गृहस्थ लाइफ को जीते हुए यदि मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वो सबसे उत्तम माना जाता है, बिकॉज दिस इज मोर डिफिकल्ट, राइट, it is more difficult to get moksha having गृहस्थ लाइफ, राइट। इसीलिए इसको जितने भी आश्रम है उन सब में इसको क्या माना गया है, बेस्ट माना गया है, राइट। इसके साथ ही इसमें व्यक्ति मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर सकता है, स्पिरिचुअल एम को फॉलो भी कर सकता है और साथ ही साथ वह मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, राइट। इसीलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दिया गया है। नेक्स्ट इज वानप्रस्थ आश्रम, राइट, और इस आश्रम को भी हम के इसकी ड्यूटीज, ऑब्जेक्टिव्स, इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सी, वानप्रस्थ मीन्स गोइंग टुवर्ड द फॉरेस्ट एरिया, राइट। अब इट इज़ वेरी सिंपल कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी फैमिली को छोड़कर फॉरेस्ट में क्यों जाएगा। देखिए, इन गृहस्थ
in grahasth ashram. In grahasth ashram one can or individual can have grahasth life, right? वो इसमें मैरिज करता है, साथ ही साथ उसमें जितनी भी फिजिकल प्लेजर हैं, राइट, फिजिकल प्लेजर हैं या मटेरियल प्लेजर हैं, उनको कंज्यूम करता है। कुल मिलाकर इन गृहस्थ आश्रम वन कैन हैव अ मटेरियल लाइफ और वन कैन हैव द एंजॉयमेंट ऑफ मटेरियल लाइफ। इस तरीके से ही कैन सेटिस्फाई हिज सेंसेस। तो हमने ह्यूमन लाइफ को प्राप्त किया है और ह्यूमन लाइफ में जब तक हमारी सेंसेस, राइट, हमारी सेंसेस सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक हम जो है मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, राइट। अब इन गृहस्थ आश्रम वन कैन एंजॉय मटेरियल लाइफ और मटेरियल लाइफ में वह अपनी सेंसेस को जो है, अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, बट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि जो सेंसेस हैं कभी हम उनको फुलफिल कर पाएँ। आप कितना ही अच्छा खाना खा लीजिए, फिर भी हर दिन आपको और भी अच्छा खाने की जो इच्छा है वो आपके मन में हमेशा रहेगी। इसीलिए टू कंट्रोल द सेंसेस, टू कंट्रोल द सेंसेस जो है इंडिविजुअल जो है फॉरेस्ट एरिया में जाता है ताकि वह अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सके, राइट। सो वानप्रस्थ मीन्स गोइंग टुवर्ड द फॉरेस्ट एरिया। और जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स आफ्टर अटेनिंग द 50 years ऑफ एज, राइट, जो आफ्टर अटेनिंग द 50 years एज जो इंडिविजुअल है, राइट, उनको वर्ल्डली इल्यूजन्स है, टू गेट रिड ऑफ वर्ल्डली इल्यूजन्स, राइट, और अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए जो है वानप्रस्थ आश्रम को फॉलो करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पीवी काने, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 50 years अ पर्सन गेट्स बोर्ड विद द हंगर ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स एंड डिजायर्स, राइट। तो व्यक्ति 50 साल तक जो प्लेजर्स होते हैं और जो डिजायर्स होते हैं उनको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करता है, परंतु फिर भी ये जो हंगर है ये कभी भी मिटती नहीं है, राइट। देयरफॉर टू कंट्रोल हिज सेंसेस इंडिविजुअल गोज टू फॉरेस्ट एरिया, राइट। अब जब वह फॉरेस्ट एरिया में जाता है तो वह सेल्फ कॉन्फिडेंस, एस्टिक और जो इनोसेंट लाइफ है उसके माध्यम से अपनी सेंसेस को जो है अपनी सेंसेस को कंट्रोल करता है। और जो फैमिली इल्यूजन्स है, भाई मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है ना जब आप जो रिलेशनशिप की बॉन्डेज है इस से भी क्या है आप फ्री हो जाएं। तो जो फैमिली या सोसाइटी की जो इल्यूजन्स हैं उनसे भी जो टू गेट रिड द फैमिली इल्यूजन्स व्यक्ति वन में चला जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आश्रम इज टू कंट्रोल ओवर द सेंसेस। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम, राइट, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गृहस्थ लाइफ, गृहस्थ आश्रम, राइट, टू फुलफिल और टू satisfy the senses, or we can say that enjoyment of material life. And objective of वानप्रस्थ आश्रम is control over the senses. जब आप आपकी सेंसेस को कंट्रोल करोगे only then you would be able to get the मोक्ष। और इसमें जो इंडिविजुअल है वो इन फॉरेस्ट एरिया स्मॉल हट में जो है रहता है, साथ ही साथ वो है ट्यूबर फ्रूट्स जो है कंज्यूम करता है और ज़मीन पर ही जो है सो जाता है। कुल मिलाकर वो फॉरेस्ट एरिया में जाता है और जो है इनकलकेट द क्वालिटीज टू इंक्रीज वर्क एंड नॉलेज, राइट। उसकी जो मटेरियल लाइफ है, जो वर्ल्डली इल्यूजन्स हैं उनसे उसको छुटकारा पा सके और साथ ही साथ वो वर्क और जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सके, राइट, या उसकी पर्सनालिटी में ये क्वालिटीज़ इंक्लूड हो सके। इसीलिए वो फॉरेस्ट एरिया में रहता है, राइट। ही रिसाइड्स इन हट, राइट, और जो नीचे या ज़मीन पर ही सोता है और जो फ्रूट्स को क्या करता है कंज्यूम करता है, राइट। ऑल्सो ये जो वानप्रस्थ आश्रम है इट इज कंसीडर्ड नेसेसरी टू डू सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेलिवेसी, राइट, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेलिवेसी, राइट, काइंडनेस टू लिविंग बीइंग्स, रिलीजियस, राइट, देन काउ सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेट गोल ही क्या है कि मोक्ष के लिए जो क्वालिटीज़ हैं उनको इनकलकेट करना, और इसके लिए जो काइंडनेस है या सेलिवेसी है, सेल्फ रिस्ट्रेंट है, इनको फोकस करना। अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस को समझते हैं, राइट। तो वानप्रस्थ आश्रम जो है, वानप्रस्थ आश्रम हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन हिंदू सोशल लाइफ, राइट। तो जो हिंदू सोशल लाइफ है उसमें वानप्रस्थ आश्रम का क्या है, ग्रेट इंपॉर्टेंस है, राइट। क्यों? क्योंकि इस आश्रम के माध्यम से ही जो पर्सनल प्यूरिफिकेशन है दैट कैन हैपन। इसके साथ ही इस आश्रम में व्यक्ति वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए जो है कार्य करता है। व्हेन ही रिसाइड्स इन जंगल एरिया एट दैट टाइम ही प्रोवाइड्स एजुकेशन फॉर अदर्स, राइट। ही वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरीके से जो वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम में इंडिविजुअल थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसके साथ ही जो पीपल ऑफ जो अदर आश्रम्स होते हैं, जैसे इंडिविजुअल फ्रॉम ब्रह्मचर्य आश्रम, उनके लिए जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? साथ ही साथ ये आश्रम जो वरीज ऑफ ओल्ड एज है, राइट, चाहे वो हेल्थ हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उनसे क्या है, फ्री करती है। सो दिस आश्रम कीप्स द पर्सन फ्री फ्रॉम वरीज ऑफ ओल्ड एज। आल्सो जो वानप्रस्थी है, राइट, वानप्रस्थी मूव टुवर्ड स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट, with all his abilities which is necessary for attaining salvation. Clear? Now fourth is sannyas ashram. See, sannyas ashram is the last ashram of ashram system. After attaining the age of 75 year, one can enter into sannyas ashram. अब जो संन्यास आश्रम है इसमें क्या किया जाता है, देखिए जो वानप्रस्थ आश्रम होता है, इन वानप्रस्थ आश्रम जो इंडिविजुअल है, ही रिसाइड्स इन फॉरेस्ट एरिया, और वहाँ पर अपने सेंसेस को अंडर कंट्रोल करता है, राइट। आल्सो बिकम्स सक्सेसफुल इन गेटिंग रिड ऑफ वर्ल्डली इल्यूजन्स, राइट। उसके बाद में जब वानप्रस्थ आश्रम में, राइट, इन वानप्रस्थ आश्रम जब व्यक्ति अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है, राइट, he becomes successful getting rid of worldly illusions, then he is considered eligible to enter the sannyas ashram. Clear? After the attaining 75 year of age, यदि कोई व्यक्ति अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है, वर्ल्डली इल्यूजन्स है उनसे छुटकारा पा लेता है, then he can enter into संन्यास आश्रम। और इसमें कई रिचुअल्स की जाती हैं, राइट। इसमें जो इट इज दीज रिचुअल्स आर बिलीव्ड टू प्योरीफाई द माइंड, इसमें माइंड को प्यूरीफाई करने के लिए जो है कई टाइप के जो है रिचुअल्स की जाती हैं ताकि मोक्ष की क्या हो सके, प्राप्ति हो सके, राइट। और इस आश्रम में दोज एंटरिंग दिस आश्रम हैव अ लॉ टू लिड अ लाइफ ऑफ नॉन अटैचमेंट। कुल मिलाकर यहाँ पर जो लाइफ है वो नॉन अटैचमेंट होती है अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, राइट। और कुल मिलाकर यहाँ पर नॉन अटेनमेंट जो है लाइफ, नॉन अटैचमेंट जो लाइफ है इसको एंजॉय किया जाता है। और जो सन्यासी होता है, राइट, जो सन्यासी होता है ना तो वो किसी सर्टेन प्लेस पर रिसाइड करता है, राइट, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर जो है घूमता रहता है, राइट। और केवल थ्रू आर्म्स, राइट, आर्म्स के माध्यम से ही जो है अपना गुजारा भत्ता करता है, राइट। और साथ ही साथ सरेंडर्स हिमसेल्फ कंप्लीटली टू द गॉड, तो वो अपने गॉड के लिए अपने आप को क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है, राइट। और जगह जगह पर ना तो वो किसी सर्टेन प्लेस पर रुकता है, वह वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है, अपने आप को गॉड के लिए सरेंडर कर देता है, राइट। उतनी ही आर्म्स मांगता है जिससे वह जीवित रह सके, और इस तरीके से वह संन्यास आश्रम को जो है ग्रहण करता है, राइट। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन, फॉर अ सन्यासी द वर्ल्ड बिकम्स लाइक अ फैमिली एंड ही हैज एन equanimity toward all classes and groups. He considers the welfare of entire humanity as his sole aim.
राइट। तो कुल मिलाकर संन्यास आश्रम में जो सन्यासी है वो पूरे वर्ल्ड को ही अपना फैमिली मानता है और पूरी ह्यूमैनिटी के वेलफेयर को ही अपना सोल एम मानता है। साथ ही साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक है, राइट, वो इस तरीके से जो है निकल कर सामने आता है। साथ ही साथ वह कंप्लीटली क्या होता है, स्पिरिचुअल हो जाता है बाय माइंड, वर्ड और स्पीच। तो साल्वेशन प्राप्त करने के लिए जो है स्पिरिचुअल बाय माइंड, वर्ड और स्पीच हो जाता है और इस तरीके से ही में अटेन द मोक्ष। नाउ वी विल सी ड्यूटीज ऑफ अ सन्यासी, राइट। वन हु इज इन संन्यास आश्रम इज नोन एज सन्यासी। और सन्यासी की ड्यूटी क्या होती है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि सन्यासी कैन नॉट reside a particular place, he has to go from one place to second place, and also he would be depend on alms for the fulfillment of stomach, right। तो उसको अपने जीवन के लिए जो है आर्म्स पर डिपेंड होना पड़ेगा। also आर्म्स में भी ये नहीं कि उसने किसी से भी जो है पर्याप्त मात्रा में ले लिया, राइट। he would take so much alms, right, which are received as a fulfill his needs, right। और जितनी उसकी नीड है उतनी ही वो आर्म्स में क्या करता है, आर्म्स को प्राप्त करता है। अ सन्यासी शुड नॉट हैव द टेंडेंसी टू अकोमुलेट, राइट। तो वह आर्म्स के माध्यम से जो है फूड है उसको अकोमुलेट नहीं करे, उतना ही आर्म्स में फूड को एक्सेप्ट करे जितनी की उसकी क्या है, नीड है। इसके साथ ही वह अपनी सेंसेस को इतना कंट्रोल कर ले कि केवल और केवल जीवित रहने के लिए ही खाना खाए और जीवित रहने के लिए ही पानी पिए। साथ ही साथ वन शुड बियर थिक क्लॉथेस, राइट, थिक क्लॉथेस पहनना चाहिए एंड सस्पेंड द नाइट इन द शेड ऑफ अ ट्री। तो इस तरीके की वह अगर जीवन में अपनी लाइफ को मतलब सन्यासी अगर इस लाइफ को फॉलो करता है सो डेफिनेटली वह पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो जाएगा, राइट, अपने आप को गॉड के लिए सरेंडर कर देगा और इस तरीके से जिएगा। सो डेफिनेटली ही कैन गेट अ मोक्ष। इंपॉर्टेंस ऑफ संन्यास आश्रम। सी इंडियन कल्चर हैज बीन गिविंग द हाईएस्ट प्लेस टू स्पिरिचुअलिटी सिंस एंशिएंट टाइम। तो जो स्पिरिचुअलिटी है उसको हाईएस्ट प्लेस दिया गया है और इस वजह से संन्यास आश्रम इज हैविंग इंपॉर्टेंस। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी है विच इज प्रेवलेंट इन संन्यास आश्रम और इसी से जो वासुदेव कुटुंबकम स्लोगन है ये बूस्ट हुआ है। साथ ही साथ सन्यासी कंसीडर्स एवरीवन एज हिज ओन, हम ये कहें कि वह पूरी दुनिया को ही अपना परिवार समझता है या पूरी दुनिया को एक समझता है और ह्यूमैनिटी जो होती है वो ह्यूमैनिटी की शिक्षा देता है। साथ ही साथ जो सन्यासी है, राइट, वो सन्यासी वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन और बाय गिविंग अप मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स अवे फ्रॉम द राइट वर्ल्डली इल्यूजन्स। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जो सन्यासी होता है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वर्शिप करता है, साथ ही साथ वो मटेरियल या नॉन मटेरियल जो थिंग्स होती हैं, राइट, उनको छोड़ देता है, राइट, और जो वर्ल्डली इल्यूजन्स होते हैं, right, giving up worldly illusions and giving up material and non-material things, right। Kapadia has said that sannyasi along with the expansion of humanity guides and inspires the society, right। तो human welfare के लिए जो है गाइड करते हैं और जो है इंस्पायर भी करते हैं। At last we will study the importance of ashram system. See, अगर this question, if this question is asked as a 11 marker question, then we have studied the importance of brahmacharya ashram, importance of grihastha ashram, importance of banprastha ashram, and at last importance of sannyas ashram. So you can compile all these facts and write a beautiful answer. And if this question is asked as a 5 marker question, then we can summarize in this way. See, ashram system is most important for mental and intellectual advancement or
mental and intellectual development of a person, right? तो चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, उसमें मेंटल एवं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए आश्रम सिस्टम जो है इंपॉर्टेंस प्लेस रखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, राइट? लाइफ की किस स्टेज में क्या करना चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, वो पूरा का पूरा हमें आश्रम सिस्टम से पता चलता है। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ अ वेलफेयर लाइफ, राइट? सो if we follow the ashram system then definitely जो गृहस्थ आश्रम के बाद में जो संन्यास आश्रम है और वानप्रस्थ आश्रम है उसके माध्यम से we get the knowledge of welfare life, then welfare of the society की जो जानकारी है वो हमको वानप्रस्थ आश्रम और इससे सन्यासी आश्रम से प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमारी जो है लाइफ को भी हमारी लाइफ में भी जो है वेलफेयर या हमारी लाइफ भी जो है सिस्टमेटिक होती है, राइट? और सिस्टमेटिक होती है और हमारी लाइफ का या हमारा खुद का भी वेलफेयर होता है। देन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, राइट? तो through ashram system we can have a material life also and we can follow the spiritualism, at last we can have the moksha also. Then development of different stages of life, that इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर कर्मा ओरिएंटेड क्या हो जाएगी, लाइफ हो जाएगी, राइट? अगर हम देखें तो हमारा कर्म सिद्धांत कहता है, राइट, कि जो वेड डीड है या गुड डीड होती हैं अकॉर्डिंग टू दैट ही बर्थ और क्या होता है, रीबर्थ प्रोसेस होती है, राइट? तो यदि कोई व्यक्ति कुछ भी जो है कर्म करता है, राइट, तो इस सिस्टम के माध्यम से जो है कर्म ओरिएंटेड उसका जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरीके से सेट होता है। देन ऑल राउंड डेवलपमेंट हेल्पफुल इन सोशल स्टेबिलिटी, एट लास्ट क्या हो जाएगा, कल्चरल जो है सबसिस्टेंस हो जाएगा और कल्चरल क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, राइट? सो वी हैव फिनिश्ड आश्रम सिस्टम। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विथ न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।